Now, today we are going to discuss about organic reaction mechanism, general mechanism of organic reaction. Mechanism of organic reaction. During any chemical reaction, कोई भी chemical reaction होगी, then you may observe that suppose कि इस टाइप की रिएक्शन जो तुमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी, CH3 CH2 Cl, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोइथेन. When this one react with KOH, chlorine atom is replaced by OH atom. It get converted into CH3 CH2OH plus KCl. The substance, a reagent which is provided is carbon atom is called as substrate, and the reagent which is going to replace any of the carbon atom of the substrate by any other atom or functional group then is called as attacking reagent. Attacking reagent, ये टर्मिनोलॉजी तुम्हें सबको आनी चाहिए. सबस्ट्रेट किसको कहते हैं? reagent which provide carbon atom for reaction on the or main substance on which chemical reaction is take place. Attacking reagent normally replace or add any functional group on substrate. रिप्लेस करेगा, ऐड करेगा, डिलीट करेगा, तो उसको अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं. इससे सबस्ट्रेट में से जो मेन क्लोरीन रिप्लेस होकर OH आ गया, then is called as product, and this one is called as बाय प्रोडक्ट. अदर देन प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट नहीं है, उस सब चीज को बाय प्रोडक्ट कहते हैं. केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, if you observe, this is a kind of substitution reaction. Substitution का मतलब होता है replacement. It's a kind of substitution reaction which was explained here. In order to understand what do you mean by substrate, what do you mean by attacking reagent? During any chemical reaction, substrate is substrate. It is a kind of one kind of reagent. Is attacked by attacking reagent result into formation of product and byproduct may take place in single step or multiple number of step is known as organic reaction. Here multiple number of step involve multiple number of intermediate as reaction of organic compound.
समझे? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, रिएजेंट का कन्वर्जन किसमें होता है? प्रोडक्ट में। ये दोनों किसका काम करेंगे? रिएजेंट। अमोंग दिस व्हिच प्रोवाइड द कार्बन इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, जिसके थ्रू कार्बन इज अवेलेबल फॉर द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, which replace the any other atom of the substrate, any atom or functional group of the substrate by any other atom, और ऐड करेगा या रिमूव करेगा, then it's called as attacking reagent. It's result into formation of product and many times byproducts. So first we need to define the mechanism. What do you mean by organic reaction? What do you mean by organic reaction? Methyl. Yes, sir. Okay, यहाँ तक क्लियर है? Yes. तो यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन हुआ? Substrate CH3CH2Cl. नाम? Chloroethane. क्लोरोइथेन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन हुआ? Attacking agent. प्रोडक्ट क्या मिली? नेम? Ethanol. इथेनॉल। और PCl एज ए बाई प्रोडक्ट। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि एक ही स्टेप में हो जाएगा। तेरे को सॉल्ट वाटर बनाना है तो कैसे बनाएगा? हेलो? Yes, sir. सॉल्ट वाटर बनाना है तो कैसे बनाएगा? Salt water. Acid. नमक का पानी बनाना है तो Acid plus water. क्या? एसिड प्लस वाटर। सॉल्ट वाटर बनाना है तो हम पानी लेंगे, उसमें नमक डालेंगे, डिसॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं? Yes. तो फिर ये अपने आप हो जाएगा कि तेरे को कुछ करना पड़ेगा? इसमें नमक और पानी को एक दूसरे के साथ मिक्स करने पे हो जाएगा कि कुछ करना पड़ेगा? शेक करना पड़ेगा। शेक करना पड़ेगा, बट ये सिंगल स्टेप में फटाफट हो जाएगी प्रोसेस। यस। पक्का? यस। लेकिन अगर खिचड़ी बनानी है तो अलग अलग वेजिटेबल्स लेने पड़ेंगे, फिर काटने पड़ेंगे, फिर कुकर में डालने पड़ेंगे, फिर चावल दाल वो भी डालनी पड़ेगी, पानी भी डालना पड़ेगा, नमक मसाला भी डालना पड़ेगा, फिर उसको कुकर पे रखने के बाद हीट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जब तक सीटी नहीं बच जाती तब तक ये प्रोसेस करती रहने पड़ेंगे। यस। सही है? यस। Does it take place in a one step or many number of steps? कटिंग अलग है, मिक्सिंग अलग है, हीटिंग अलग है। many number of steps. सही है कि नहीं? यस। तो उसको कहते हैं मैकेनिज्म। उसको क्या कहते हैं? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो तूने खिचड़ी कभी बनाई है? नहीं सर। नहीं बनाई है। फिर भी तेरे को चीजें मालूम थी कि वेजिटेबल्स को कट करना पड़ेगा पहले स्टेप में? यस। फिर दूसरे स्टेप में वेजिटेबल कट हो जाए प्रॉपर साइज के बाद में उसमें चावल है, दाल है, नमक है, वो सब पानी है, वो सब के अंदर लेके उसको डालना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। सही है? सब वेजिटेबल ये सब चीजें ग्रेन सब मिक्स हो गए, फिर उसके बाद उसको हम कुकर में लेंगे और हीट प्रोवाइड करेंगे। यस। और कब तक हीट प्रोवाइड करते जाएंगे? जब तक वो बन नहीं जाती तब तक। कैसे मालूम पड़ेगा बना कि नहीं? सीटी बजती है। सीटी बजती है, कोई चीज में 2 सीटी या 3 सीटी बजेगी, तब तक हम वेट करेंगे। यस। सही है कि नहीं? सही है। तो ये तूने जो पूरी प्रोसेस बोली उसको मैं रिवर्स करूँ तो पहले एक काम करूँ तो कुकर में पानी लेके सिर्फ चावल को अलग से उबाल दूं और बाद में उसके अंदर जो मैंने कट किए हुए जो थे वेजिटेबल्स उसको डाल दूं तो नहीं होगा। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? आगे पीछे चलता है ना? नहीं चलता है। नहीं चलता है? पक्का? यस। हाँ, तो वो जो वहां पे नहीं चलता है वो यहाँ पे भी नहीं चलता है, तो इसको हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं। इसका डेफिनेशन जो लिखना है वो इस तरीके से लिखा जाता है, अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ, अ सीक्वेंशियल यानी सीक्वेंस में हो वो
हाँ, sequential account of each step, account of each state, each step, जितने भी स्टेप आने वाले हैं, एक आने वाला है तो एक, दो आने वाले हैं तो दो, sequential accounts of each steps, describing details of electron movement, describing details of electron movement, मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहा है वो बताना है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एनर्जेटिक्स, कितनी तुमने एनर्जी दी, हीट प्रोवाइड किया तो हीट हीट रिलीज किया तो हीट रिलीज होगा, एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग बॉन्ड क्लेवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें कितना एनर्जी चेंजेस हुआ वो, एंड बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें कितना एनर्जी चेंजेस हुआ वो, सही है। yes, एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग बॉन्ड क्लेवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड रेट यानी काइनेटिक्स, कितनी स्पीड से हुआ वो, सॉल्ट वाटर जल्दी बनेगा कि खिचड़ी, salt water, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी स्पीड से होगा वो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज रिफर्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म, इज रिफर्ड एज, reaction mechanism, क्या क्या आएगा, पहला sequential, सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप, जितने भी स्टेप आने वाले वो सीक्वेंस में ही लिखने हैं, बराबर। पहले तुमने कुकर में सीटी बजा दी, हीट कुकर में पानी डाल के, फिर उसके अंदर तुमने चावल दाल वो सब डाला, तो सीटी बजाने के बाद दाल चावल कच्चे डालोगे तो कच्चे ही रह जाएंगे, फिर उसके अंदर जो कट किए हुए वेजिटेबल्स डालोगे तो चलने वाला है क्या ये, नहीं, नहीं, तो सीक्वेंस में ही करना पड़ेगा, पहले वेजिटेबल्स कट करने पड़ेंगे जो कुछ भी रिक्वायर्ड है, फिर जो कुछ भी दाल चावल वेजिटेबल्स है उन सबको एक दूसरे के साथ मिक्स करना पड़ेगा विथ वाटर, अलग अलग जितने भी स्पाइसेस नमक जो कुछ भी डालना है उसके साथ, फिर ये पूरा जो मिक्सर है उसको कुकर में लेना पड़ेगा, फिर गर्म करोगे तो ही खिचड़ी बनेगी, अगर yes, सीक्वेंस में नहीं रखते तो नहीं बनेगी, तो नहीं बनेगी, इसलिए सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ इच स्टेप अच्छे से कौन से किसके बाद कौन सा आएगा वो मालूम होना चाहिए। जैसे हमने IUPAC किया तो हमने ईच एंड एवरी रूल, पहला कहा कि भाई लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करो, फिर लोवेस्ट नंबर करो, फिर ब्रांच को मिनिमम नंबर मिलने चाहिए, अगर एक जैसी दो ब्रांच है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर अगर उसके बाद हमने कहा कि अगर मोर देन 2 लॉन्गेस्ट चेन है तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कैरीज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, बराबर। फिर फंक्शनल ग्रुप को किया, फिर साइक्लिक बेंजीन, तो हमने सीक्वेंस में किया तो क्या हो गया, हमारा काम आसान हो गया, इजी हो गया, इसलिए कहते हैं इट इज अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप्स डिस्क्राइबिंग द डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करने वाले हैं वो मालूम होना चाहिए। हमने इसलिए चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी पढ़ा था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा, देगा, सही है। तो उसके बारे में एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग बॉन्ड क्लेवेज एंड बॉन्ड bond फॉर्मेशन, formation, बॉन्ड फॉर्मेशन और क्लेवेज में कौन से टाइप के एनर्जी चेंजेस होंगे वो, एंड रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, चार चीजें लिखनी है। फर्स्ट सीक्वेंशियल अकाउंट्स ऑफ ईच स्टेप्स, सेकंड डिस्क्राइबिंग द डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, थर्ड energetics during bond formation and bond cleavage, and fourth rate of transformation of reactant into product is referred as, reaction mechanism, अगर ये चार में से कोई भी तुम भूल गए पॉइंट बराबर तो तुम्हारे मार्क्स काट लेंगे, नॉर्मली मैं 0 ही देता हूँ, 2 मार्क्स में आती है मैकेनिज्म डेफिनेशन 2 या 0, सही है। yes, चलो नेक्स्ट, आफ्टर दिस फिजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन मीन्स ब्रेक डाउन, फिजन का मतलब क्या होता है, breakdown, हाँ, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर मेनली 2 टाइप्स, कितने टाइप के हैं, 2 types,
two types. Homolytic cleavage and heterolytic cleavage. कौन से दो type? Homolytic cleavage and heterolytic cleavage. Homo means same and hetero means Different. different. It is also called as homopolar reaction. Normally homopolar or non-polar reaction. When electronegativity difference between two atoms is very less, then this kind of cleavage take place. For example, दो क्लोरीन एटम है तो दोनों क्लोरीन एटम में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, पहले वाले की कि दूसरे वाले की? सेम ही होगी. सेम ही होगी. तो इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट अगर इसका ब्रेक होगा सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये दो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक एक बॉन्ड बनाता है कि नहीं अपने? Yes. तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास ले लेगा ये वाला और दूसरा वाला अपना इलेक्ट्रॉन एक्स के पास और बीच में से बॉन्ड ब्रेक हो गया कि नहीं? तो हो गया. इसको भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और दूसरे को भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा. हाँ. तो ये क्यों हुआ इन दोनों के बीच में होमोलाइटिक क्लेवेज? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसी थी? सेम थी. सेम थी. दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले थे या तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था इसलिए. सही है. तो दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन मिले? किसी एक को दो मिला कि ऐसा हुआ क्या? नहीं, नहीं. तो दोनों को सेम मिले. सो यहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है इसलिए इसको नॉन पोलर कहेंगे या होमोपोलर. सेम पोलैरिटी है. क्लियर? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ हेडेड एरो. रिप्रेजेंटेड बाय half-headed arrow. हाफ हेडेड जिसका आधा ही सिर है. नॉर्मली एरो में देखो ऐसे एक और दो पूरा सिर होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ. यहाँ पे कितना रहेगा? सिर्फ एक की तरफ. आधा ही एक की तरफ का. सही है. Yes. And this result into formation of free radical. Result into formation of free radical. सही है. Yes. चलो. So this is about homolytic cleavage. Homolytic cleavage is also called as Non-polar reaction. homopolar or non-polar reaction. For example, chlorine Cl2 molecules क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? पहले वाले क्लोरीन को. दूसरे को भी एक. दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. दोनों को एक एक मिला. Yes. कैसे टाइप के एरो से रिप्रेजेंट करेंगे? half-headed arrow. हाफ हेडेड. और क्या रिजल्ट क्या बनेगा इसके वजह से? फ्री रेडिकल. इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है बराबर है इसके पास भी. दोनों के इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए. Yes. इसलिए उसको क्या कहते हैं? Free radical. दिस इज कॉल्ड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट रिएक्शन. कितने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है? दोनों तरफ एक एक ही इलेक्ट्रॉन कर रहा है. Yes. सही है. सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. सही है. चलो. हेटेरोलाइटिक क्लेवेज नेम के साथ ही लिखा है. अगर ये होमोपोलर है तो ये कैसी होगी? Heteropolar. हाँ. हेटेरोपोलर एग्जैक्टली अपोजिट और Polar reaction. पोलर और आयोनिक भी कहते हैं पोलर की जगह पे. आयोनिक रिएक्शन. सही है. Yes, sir. एग्जाम्पल इट इज टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट. यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहे थे. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होंगे? 2 electron movement. 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज टेक प्लेस. एग्जाम्पल CH3Br दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या कार्बन की और ब्रोमीन की अलग अलग है? अलग अलग है.
कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किस पे नेगेटिव आएगा, किस पे पॉजिटिव? ब्रोमीन पे नेगेटिव होगा। नेगेटिव। तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले गए तो कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा? जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसको कौन सा चार्ज मिलेगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसको कौन सा मिलेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसको नेगेटिव चार्ज। उसको पॉजिटिव, जिसने डोनेट पॉजिटिव। किया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन जाता था तो पॉजिटिव चार्ज आता था। पॉजिटिव। हाँ, और ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। सही है। यस। तो कार्बन के आसपास अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? सिर्फ एक। 6 रह गए। बाद में 6। बता रहा हूँ, चलो वो ये क्लियर हो गया। क्यों क्यों इस तरीके से हुआ? CH3Br में क्यों हिट्रोलाइटिक क्लेवेज हुआ? ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था किससे? कार्बन से। हाँ, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा थी, तो क्या हुआ? ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन ले गया। दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ले गया। कार्बन और ब्रोमीन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज आया और कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज। हाँ, कौन से एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? फुल हेडेड एरो। हाँ भाई, कंप्लीट एरो कहते हैं उसको। कंप्लीट। हाँ, परफेक्ट एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। सही है। और क्या बना ये? आयन। कौन सा? कार्बन पे कौन सा चार्ज है? प्लस। हाँ, तो उसको कहते हैं कार्बोकैटायन। कार्ब कैटायन एंड कार्ब एनायन बनाते हैं। पहला वाला क्या बनाता था? फ्री रेडिकल बनाता था। एक कैटायन और एनायन बना रहा है। यस। सही है, इसलिए इसको आयोनिक रिएक्शन भी कहते हैं। सो fission of a covalent bond, how many types? 2 types. Which 2 types? Homo. Homolytic, lytic. Homolytic Homo means cleavage same and and lytic heterolytic. means breakdown. फिजन का मतलब ही क्या होता है? ब्रेक करना। Breakdown. बराबर। किसी दो के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है। कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना है? Covalent bond. होमोलाइटिक क्लेवेज एंड Heterolytic cleavage. होमोलाइटिक क्लेवेज किसको कहेंगे? Homolytic cleavage को होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शन। जो होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शन में होता है उसको होमोलाइटिक। हेटेरोलाइटिक हेटेरोपोलर एंड पोलर और आयोनिक रिएक्शन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन, दोनों क्लोरीन के बीच में एक एग्जांपल दे देने का, Cl2 कि भाई इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट ब्रेक होगा तो Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। जबकि यहाँ पे CH3Br में दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास चला जाएगा तो CH3 पे प्लस और Br पे माइनस। ये कौन से एरो से रिप्रेजेंट किया? हाफ हेडेड ये एरो। कंप्लीट एरो। यहाँ पे क्या बने? यहाँ पे फ्री रेडिकल। और यहाँ पे क्या बना? कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन। कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन। सही है। यस। चलो, नाउ अबाउट कार्बोकैटायन। Carbon which carries positive charge is called as कार्बोकैटायन। carbocation. Carbon which carries cation यानी कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। Charge is called कार्बोकैटायन। सही है। यहाँ पे देखो किस पे पॉजिटिव चार्ज था? CH3 प्लस। सही है, कार्बन पे पॉजिटिव था। तो देखो कार्बन के आसपास टोटल कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो 3 यानी कितने हुए?
6 ऑक्टेट कंप्लीट है क्या इसका? नहीं, It has sextet of electron. It has 6 electron at a sextet of इलेक्ट्रॉन electron around carbon atom. Hence it does not complete its octet. उसका octet complete है नहीं, नहीं. Octet hence and less stable. Stability कैसी होगी? लेस Less. Hence does not complete octet and less stable. सही है कि गलत है? सही है. चलो. कार्बोकैटायन आर मेनली 3 टाइप्स. कार्बोकैटायन कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स. 3 टाइप्स. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. अगर प्राइमरी किसको कहेंगे? ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के आसपास और कितने कार्बन थे? पहले वाले में देखो, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के आसपास और कितने कार्बन है? 1 कार्बन है. 1. इसको प्राइमरी कार्बोकैटायन. इसको कौन सा कहेंगे? प्राइमरी कार्बोकैटायन. यहाँ पे इसको सेकेंडरी क्यों कार्बोकैटायन. सेकेंडरी? कार्बन के आसपास और 2 कार्बन है. इसको सेकेंडरी कार्बोकैटायन. और तीसरे को positively charged carbon gets surrounded by 3 other carbon atom, then कौन सा कहेंगे उसको? मिथिल. हेलो मिथिल. यस सर. हाँ, इसको कौन सा कहेंगे? द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन. जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके आसपास 3 अदर कार्बन है तो टर्सरी कार्बोकैटायन. पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के आसपास 2 है तो सेकेंडरी. और पॉजिटिव के आसपास 1 है तो प्राइमरी. प्राइमरी कार्बोकैटायन. So carbocations are mainly 3 types: primary, secondary and नाम tertiary carbocation. Primary, secondary and tertiary. Primary carbocation, secondary carbocation 2 degree and 3 degree. Tertiary carbocation. थर्सरी. हो गया? चलो. Yes. Among these 3, tertiary carbocation is more stable than secondary than primary. Stability order क्या है? कौन सा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है? थर्सरी कार्बोकैटायन. फिर सेकेंडरी. सेकेंडरी. फिर प्राइमरी. प्राइमरी. और अगर कार्बोकैटायन के आसपास एक भी और दूसरा कार्बन नहीं है तो इसको सिंपल कहते हैं. इस वाले को सिंपल कार्बोकैटायन कहते हैं. क्यों सिंपल? एक भी कार्बन नहीं है. कार्बन के आसपास और कोई भी अल्काइल ग्रुप है नहीं. तो प्राइमरी कार्बोकैटायन के आसपास कितने अल्काइल ग्रुप है? 1. सेकेंडरी के आसपास 2. और टर्सरी के आसपास 3. 3. So why the order of stability of carbocation is tertiary, secondary and primary? उसका रीजन कौन सा ग्रुप है? मिथाइल. मिथाइल यानी कौन सा? अल्काइल. What alkyl group can do? Alkyl group stabilizes the carbocation due to inductive effect and hyperconjugation effect. अब ये 2 इफेक्ट क्या है वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. So higher the number of alkyl group, higher the stability. सही है? यस. चलो. उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? कितने बॉन्ड है इसके आसपास? 1, 2 और 3. तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp3. 3. तो 4 बॉन्ड हो जाते हैं, एक एस का और 3 पी के. sp2. 3 बॉन्ड. एस का 2 पी का.
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, समझे? और sp2 है तो शेप कौन सा आएगा? जल्दी। सिंपल। ट्राइगोनल प्लानर, भूल गए सब। sp3 होता तो टेट्राहाइड्रल, sp होता तो लिनियर। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये सब सिखाया है। यस। Carbocation is also called as carbonium ion. It is also known as कार्बोनियम आयन। चलो कार्बोकैटायन के बारे में क्लियर। कार्बोकैटायन किसको कहते हैं, क्या है, कैसे बनेगा? कार्बोकैटायन is obtained by hydrolytic cleavage. Carbon which carries the positive charge is called as carbocation. It has कार्बोकेटायन। 6 electrons, sextet of electron around carbon atom. So it does not complete its octet and less stable. there are 3 types. Primary carbocation, the positively charged carbon attached with one more carbon, then is called as primary. Positively charged carbon attached with 2 other carbon, then secondary. Positively charged carbon attached with 3 other, than tertiary. Stability order tertiary carbocation is more stable than secondary, than primary, than simple. However, as the number of alkyl group increases, stability increases, because alkyl group stabilizes the carbocation by which two effect? Inductive effect and hyperconjugation. Inductive effect and hyperconjugation effect. Hyperconjugation effect. It has sp2 hybridization and trigonal planar shape. Trigonal planar shape. Clear? Yes. This is about carbocation. Next, carbon which carries the negative charge is called as carboanion. Carboanion. Carbon atom which carries negative charge is called as carbanion. Carbon carries negative charge. सही है? Yes. वो भी हिट्रोलाइटिक क्लेवेज के वजह से ही होगा। सपोज कि इस तरीके से कोई है CH3Z, जहां पे Z जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, Z सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। कोई भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल होता, उसके सामने कार्बन कौन सा चार्ज हो जाता? नेगेटिव। तो वो नेगेटिव हो जाता, इसको पॉजिटिव मिलेगा, तो दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे इसके हिट्रोलाइटिक क्लेवेज होने पे? कार्बन के पास। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाते हैं, तो कार्बन को ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलेगा और नेगेटिव चार्ज मिलेगा, जबकि जेड पे कौन सा चार्ज आ जाता? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, सही है। तो कार्बन विच कैरीज नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्बोएनाइन। कार्बोएनाइन। हियर कार्बन आइटम के पास इस तरीके से हो जाता है, देखो 1 2 3 हाइड्रोजन आइटम से तो था ही, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। सही है? यस। 8 इलेक्ट्रॉन with lone pair of electron, with one lone pair of electron, lone pair and negative charge. सही है कि नहीं? यस सर। नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास टोटल कितना बॉन्ड हो गया है? हैंस 1 2 3 और एक बॉन्ड लोन पेयर की वजह से होगा, तो कितने हुए? 4। हाँ, इट इज sp3 hybridized. यस। और नॉर्मल अगर कोई लोन पेयर नहीं होता तो उसका शेप कौन सा होता?
sp3 है तो टेट्राहाइड्रल, बट यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से टेट्राहाइड्रल से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो इसको कहते हैं डिस्टोरेटेड टेट्राहाइड्रल। tetrahedral. चैप्टर तुम्हारा 4 केमिकल बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, इंप्रूव करो। डिस्टोरेटेड टेट्राहाइड्रल शेप। नाउ कार्बोएनाइंस आर आल्सो 3 टाइप्स। चलो इसको कौन सा टाइप का कहेंगे? इसको कौन सा कहेंगे? फर्स्ट को इथाइल, अरे प्राइमरी, सेकेंडरी के टर्सरी? फर्स्ट को प्राइमरी, सेकेंडरी का ये कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है? एक, तो प्राइमरी। ये सेकेंडरी, और ये नेगेटिवली चार्ज कंटेनिंग कार्बन अटैच विद 3 अदर देन टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लाइक कार्बोकैटायन। बट कैटायन और एनायन एक दूसरे से कैसे हैं? ऑपोजिट है। अपोजिट। स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका एग्जैक्ट उल्टा आएगा। वहां पे कौन ज्यादा स्टेबल था कार्बोकैटायन वाले में? टर्सरी। तो यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे सिंपल, सिंपल सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर प्राइमरी, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। टर्सरी लेस स्टेबल आ जाएगा। सही है। यस। This is all about our today's class. Difference between carbocation